viewers, welcome back to Mathematics by Rumina. And yes, we are very excited because yes, we are in the end of trigonometry chapter. That means we are going to do miscellaneous exercise today and I'm going to complete all the questions in one go. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो बिल्कुल बहुत आसानी से हम लोग एक बारी में ही सॉल्व कर पाएंगे. एंड येस, आई वुड नॉट से दैट दे आर डिफिकल्ट, दे आर क्वाइट सिंपल, बट हाँ जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है उस पर कुछ अप्रोच लगेगी तो वो आपको समझने की ज़रूरत है. जैसे कि इन द लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.3 में ज़्यादातर क्या हो रहा था बेटा, ज़्यादातर वी वर एबल टू अप्लाई योर साइन ए प्लस बी plus cos a plus b, but right now we have to go through many more formulas, we have to understand them. So let's see that how we're going to cope up and how we're going to get many answers and how easy the miscellaneous exercise is also. So can I get started? Yes, are you all ready? So thank you so much everyone. Let's get ready, open up your books and please first of all pause the video, start to do it yourself. If you face any kind of trouble in solving it, then look at my answer and then try to solve it one more time. Okay, this is the approach to solve maths because normally concepts सारे clarified मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ. सिर्फ miscellaneous question है, थोड़े से difficult होते हैं, I totally agree, but yes बच्चा आप लोगों को करने पड़ेंगे because in the end अगर आपने एक बार miscellaneous कर लिया तो you can say that हाँ मुझे exercise proper तरीके से आती है, and that is what going to build up your confidence. Okay, so let's get started. The first question is 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. 13 देखो कॉमन ही है, इसमें इक्वल टू 0 है. तो अगर मैं देखती हूँ बेटा, अगर मुझे इस आंसर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ 2 cos let's take cos a cos b. Okay, it would be more easy for us to define like this. So 2 cos a cos b, and that is going to give us the answer that would be cos a plus b plus cos a minus b. ये आ गया. is just use it. So what I will get from here, if you just see beta, I will get from here that is cos pi by 13 plus 9 pi by 13 कितना आएगा 10 pi by 13 plus cos pi by 13 minus 9 pi by 13, it would be your 8 pi by 13 and what is your cos minus x, that is cos x itself. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास cos 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 and plus cos 5 pi by 13. Now class, please observe one thing very carefully over here. If I want, can I just convert them in the form of pi plus or pi minus? Let's see that whether we can do it or not. If you just see one thing over here, can I just write this as cos, देखो बच्चा क्या मैं इसको लिख सकती हूँ cos pi minus 3 pi by 13, बिकॉज जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूँगी मुझे क्या मिलेगा 13 minus 3 that is 10 pi by 13 प्लस cos यहाँ पे क्या आएगा pi minus 5 pi by 13, एलसीएम लेके देख लो 13 minus 5 that is your 8 pi by 13. ओके, तो काफ़ी सिंपल था ये सॉल्व कर पाना. एंड दिस बोथ द टर्म्स एज इट इज़. अब यहाँ पे बेटा अच्छे से एक चीज़ और ऑब्जर्व करना, व्हाट इज़ योर cos pi माइनस थीटा. सिंस आई नो cos pi है तो cos का cos ही रहना था. pi माइनस से सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होगा एंड थीटा आ जाएगा. सो दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट इट ओवर हेयर एज माइनस cos 3 pi by 13 minus cos 5 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. So yes, I think मेरे बच्चों को आइडिया हो गया होगा. बच्चा कुछ नहीं करना था, आप सिंप्लीफाई कर दो. If you just see one thing very carefully over here, this got cancelled with this and this got cancelled with this, and yes my answer is 0. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. LHS equals to RHS, hence proof. Yes, we are done. Easy, simple. I think it's quite easy peasy and I hope that you people must be loving the content and the way which I am delivering. अगर कोई doubt है so please comment me below. I'm there to help you out, but yes you have to comment for that. Okay, let's move ahead. Let's move towards your question number 2. It says me that prove that. Okay, काफ़ी simple question में से एक है ये. क्यों simple है? अगेन साइन a प्लस बी मुझे साफ दिख रहा है लगाने के लिए और मैं उठाऊंगी और लगा दूंगी, बस मेरा आंसर आ जाएगा. सो इट इज़ साइन 3x प्लस साइन x
into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x equals to 0. So let's start with the left hand side. बच्चा मैं थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट चलती हूँ. I will not write the question first. I will directly apply my formula. I hope कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ से. So what is sin a plus sin b? Sin a plus sin b is going to give you the answer as 2 sin a plus b by 2 into your cos a minus b by 2. इसको अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव कॉस ए माइनस कॉस बी, तो वहाँ पे भी काफ़ी सिंपल फॉर्मूला. इट वुड बी -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 एंड इट वुड बी योर अगेन साइन ए माइनस बी बाय 2. ओके, सिंपल था. फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सही लग रहा होगा आप लोगों को. अब देखो बेटा क्या आना चाहिए. देखो साइन 3x प्लस साइन एक्स, दैट वुड बी 2 साइन a plus b. So 3 plus 1, that is 4. 4 upon 2, 2. Into cos, this would be 3 minus 1, that is 2. 2 upon 2 is x. Now this, so that would be -2 sin, ये फॉर्मूला से मैं इसकी लाइन बना देती हूँ. -2 sin, यहाँ पे क्या आएगा बच्चा देखो, 3x plus x, that is 4x. 4x upon 2 is 2x. Okay, and आगे आएगा मेरे पास again sin, now 3x minus x, that is 2x. 2x upon x is sin, that is x only, into cos x. Okay, I got this thing. अब देखो क्या कुछ कॉमन आ सकता है मेरे पास अगर मैं बेटे ध्यान से यहाँ से ऑब्जर्व करूँ. ओके, आई जस्ट फॉरगेट टू राइट इन द मल्टीप्लिकेशन. पहले मैं ब्रैकेट खोल देती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा. आई विल सिंपली गेट माई नंबर एज द टर्म एज 2 sin 2x cos x into sin x minus 2 sin 2x into sin x into cos x. yes, you are absolutely correct. अगर आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं बेटा, तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म क्या है, एग्जैक्टली सेम है. दैट मीन्स मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो कट के में आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा, विच वुड बी इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड. एंड आई वुड जस्ट सिंपली से दैट माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड, जो हमारा सपना है लाने का, और वो बिल्कुल आ चुका है. सो येस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी. कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट मैसेज मी एंड कमेंट बिलो. यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. आई एम गोइंग टू गिव द लिंक in the description, or I can just give the link in the comment box. You can just check both of them. Prove that, okay, one of the very simple question. Prove that cos x plus cos y का whole square plus sin x minus sin y का whole square is equals to 4 cos square x plus y by 2. cos x plus cos y लगा दो, सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा. यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला प्लीज़ एक बार देख लेना, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला है. cos x plus y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2, no change at all, का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस y क्या हो जाएगा बच्चा, दैट वुड बी 2 cos x प्लस y by 2 इंटू साइन x माइनस y by 2 का भी होल स्क्वायर. देखो सिंप्लीफाई करना है तो बस कुछ नहीं है, कॉमन लेना चाहिए मुझे यहाँ से. देखो पहले 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है, तो 4 कॉमन आ जाएगा. फिर cos x प्लस y by 2 भी कॉमन आ रहा है. So it would be cos square x plus y by 2. So what we are left with? We are simply left with cos square x minus y by 2 plus sin square x minus y by 2. So if you just see what is this, cos square x plus sin square x, which is equals to 1. And what we are left with? We are just left with the right hand side, that is 4 cos square x plus y by 2, which is equals to our right hand side, and hence proof. Simple question था, काफ़ी easy peasy to do. And let's move ahead. अब ये मैं होमवर्क दूंगी, बिकॉज सेम अप्रोच हैज़ टू बी फॉलोड. नथिंग न्यू, नथिंग मच, सिंपल पीसी इजी पीसी क्वेश्चन है, आप लोग ईजिली कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. इट सेज मी साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x cos 4x, सॉरी साइन 4x. सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, ज़्यादा कुछ भी इस पर डिफिकल्ट नहीं है. मैं सिंपली अपना इन दोनों को कंबाइन करूंगी और यहाँ से इन दोनों को कंबाइन करूंगी. दैट मीन्स आई एम जस्ट गोइंग टू राइट साइन एक्स प्लस साइन 7x
प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। मैं उठा के इन दोनों को कंबाइन कर दूंगी, इससे बहुत सिंपली सॉल्व होगा। मैंने इन दोनों को कंबाइन क्यों किया, ताकि सिंपली मेरे पास आंसर आ जाए, बिकॉज वी नो 7 + 1 क्या हो जाता है 8 एंड 8/2 इज़ 4, तो मुझे 4 चाहिए था, तो काफ़ी सिंपल होगा आंसर आना। बाकी आप और टर्म्स को कंबाइन करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा आपका आंसर, ओके। इसलिए मैंने जो बेस्ट सिंपलेस्ट मेथड था उस अप्रोच को यहाँ पे अपनाया है। सो दैट वुड बी योर्स। देखो साइन x प्लस वाई है, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ। वैसे आई नो कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अभी तक, अगर नहीं हुआ है सो आई विल प्लीज़ रिकमेंड, बेटा इतना डिफिकल्ट नहीं है और इतनी बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। 2 sin x + y/2 cos x - y/2, ओके। तो 2 sin 7 + 1 8 8/2 4x cos, देखो cos -x cos x रहता है तो माइनस को छोड़ देना, सो cos 1 - 7 दैट इज 6 6/2 is 3x प्लस अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सो दैट वुड बी 2 sin 8 8/2 4x cos 3 - 5 दैट इज 2x, माइनस को छोड़ देना अगेन, सो 2x/x इज x। क्या कॉमन आ रहा है, 2 sin 4x बेटा कॉमन आ रहा था, एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद, आई एम सिंपली लेफ्ट विद cos 3x प्लस cos x। तो क्या मेरे पास अब cos x प्लस cos y का फॉर्मूला है, बिल्कुल है, अप्लाई इट। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ना, फॉर्मूला मिल गया और बस अप्लाई कर देंगे। देखो थोड़ा बहुत ओरली सॉल्व करना भी क्वेश्चन को आना चाहिए, अगर वो बिल्कुल भी नहीं आता है तब प्रॉब्लम हो सकती है, आई टोटली एडमिट। बट हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को आपको ओरली सॉल्व करना आता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज देन सो इट्स वेरी ईजी टू गेट द आंसर्स फॉर सच क्वेश्चंस, ओके। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में से एक है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करते क्वेश्चंस कभी भी। आप बस स्टेप करते चले जाइए, आपको अपने आंसर खुद मिलते चले जाएंगे। सो 2 cos 3 + 1 4 4/2 2x cos 3 - 1 दैट इज 2x 2x/x इज x। ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आएगा, 4 cos x cos 2x sin 4x, और यही मुझे चाहिए था, सो येस अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। सिंपल था, इजी पीजी था, आई वुड नॉट से कि इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड। आंसर नंबर 6, ये भी सिंपल है एंड सेम अप्रोच हैज़ टू बी कैरिड। कैन आई जस्ट गिव दिस एज अ होमवर्क, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ बट थोड़ा लेंदी ज़रूर हो सकता है, बट या आई वुड सजेस्ट यू टू सॉल्व दिस, बिकॉज मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने, एक पहले दिया था एक अब दे रही हूँ, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एज अ होमवर्क। डाउट आएगा सो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट देन। Now move towards your question number 7. Again a very simple question. Sin 3x plus sin 2x minus sin x is equals to 4 sin x cos 2x cos 3x by 2. So first of all we are just going to apply the formula over here, okay, because sin 2x का मेरे पास already एक formula होता है, that is 2 sin x cos x. So now what is sin x minus sin y, that formula would be 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2. So for the left hand side I would simply get the result as 2 cos, देखो 3 plus 1 कितना आएगा बच्चा, 4 4/2 2x, and sin x that is 3 minus 1 2x 2x/x x प्लस में क्या है, दैट इज़ योर 2 sin x cos x, फॉर्मूला ही है मेरे पास। अब कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो, सबसे पहले 2 कॉमन आया, फिर sin x भी कॉमन आया, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, आई एम सिंपली लेफ्ट विद माई cos 2x प्लस cos x। बस अब कुछ नहीं करना था, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करना है और मुझे मेरा आंसर भी मिल जाएगा। यू विल से कि दी सब में ही एक ही फॉर्मूला लग रहा है, अब तो लिटरली याद भी हो गया है बच्चा, ऐसे ही सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। बट हाँ, द अप्रोच यू हैव टू लुक फॉर दैट, दिस वाज समथिंग जो आपको, आप चाहे इसे याद करो फॉर्मूलाज को, चाहे आप बार बार ना लिख के देखो, जैसे मैं बार बार हर बार लिख रही हूँ फॉर्मूला को, तो इससे जो होता है फॉर्मूला आपको लर्न हो जाता है। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच दैट यू कैन टेक। सो 2 sin x, अब देखो बेटा cos 2x प्लस cos x, सो 2 + 1 दैट इज 3, सो दैट वुड बी 2 cos 3x by 2, देन इट वुड बी योर cos 2 - 1 1 1/2। क्या ये एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ गया है जो मुझे चाहिए था, बस रीअरेंज किया और ये आ गया मेरे पास मेरा आंसर, एंड आई वुड से हेंस प्रूव अगेन योर इट इज़ इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। इजी पीजी, just comment box that yes, it was a very easy peasy question ma'am.
ना क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने 3.2 में देखे थे, बट उसमें x/2 नहीं था, यहाँ पे x/2 का भी रोल इन्वॉल्व हो गया है। नो नीड टू वरी, लेट्स सी हाउ आई गोइंग टू सॉल्व इट। साइन x/2, कॉस x/2, tan x/2। tan x क्या है यहाँ पर है, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। व्हाट आई मीन बाय सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स π/2 लेस देन x लेस देन पाई। अब बेटा देखो, मुझे हर चीज़ x/2 में निकालनी है, सो कैन आई जस्ट डिवाइड दिस फुल बाय 2। x/2 लेस देन π/2 एंड यहाँ पे आएगा π/4। तो क्या ही आ गया, ये मेरे पास मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया। मतलब जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगी तो इट इज़ योर सेकेंड क्वाड्रेंट, जब मैं x/2 में सॉल्व करूँगी so it is going to be in your first quadrant. Now just see, you have your tan x equals to -4/3. Can I obtain my secant also from here? So I can just write that secant square x is equals to 1 plus tan square x square है तो प्लस हट जाएगा, सॉरी माइनस हट जाएगा, इट वुड बी 1 प्लस 16/9। सॉल्व इट बेटा, एलसीएम लूँगे तो 25/9 एंड यहाँ से मेरे पास मेरी secant x की वैल्यू क्या आएगी, दैट वुड बी प्लस माइनस 5/3। और देखो x है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, x है, सीकेंट है, सीकेंट क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होना चाहिए। तो सीकेंट x इज इक्वल्स टू -5/3 बिकॉज x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट्स इट। इतना रीज़न लिख देना, फुल नंबर मिलेंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से मेरा नेगेटिव आ गया। नाउ बेटा जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ से मेरा cos x क्या आ जाएगा, cos x वुड बी -3/5, इसका बस रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूलाज फॉर cos 2x, तो बस मुझे cos 2x के ही फॉर्मूला यूज़ करने हैं टू ऑब्टेन द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़। ओके, सो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे डिराइव करूँगी मैं अपने बेसिक फॉर्मूलाज। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर cos 2x इन टर्म्स ऑफ योर, इफ आई जस्ट से इन टर्म्स ऑफ योर sin x and cos x, so we all know that the formula for cos 2x is going to be equals to, I'm just going to write it over here. Yeah, it's going to be your 1 minus 2 sin square x. So I just want the value for cos x/2, like if you want मैं सिर्फ cos x को भी कर सकती हूँ, because cos x would be 1 minus 2, कुछ नहीं गया, एंगल को डिवाइड करिए 2 से, करेक्ट। सिंप्लीफाई करो इसको और आगे क्या आएगा बच्चा, 2 sin square x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x। इस 2 को यहाँ ले जाते हैं, sin square x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x/2, sin x/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 माइनस cos x/2। ये हो गई सिंपल कैलकुलेशन फॉर sin x/2 एंड सिमिलर कैलकुलेशन हैज़ टू बी डन फॉर cos x/2। क्लियर है यहाँ से, ये सब बेटा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी जस्ट टू नो योर एग्जाम्पल। बट सिंस मुझे पता है x/2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, x/2 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो मैं सिर्फ प्लस वाला कंसीडर करूँगी, आई विल नेगलेक्ट माई -1। सो यहाँ से मेरे पास क्या फॉर्मूलाज आएंगे, आई एम जस्ट राइटिंग माई फाइनल फॉर्मूला, दैट वुड बी योर्स sin x/2 is going to be equals to your √1 minus cos x/2। Similarly your cos x/2 आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हो, बिकॉज यू नो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x -1, वहाँ से ऑब्टेन करना अपने आप, अपने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, 1 प्लस cos x/2। तो बेटा मेरे पास बेसिकली ये दो फॉर्मूलाज है और इन दो फॉर्मूलाज के बेस पे ही मैं अपना आंसर ईजिली आपको निकाल कर दे पाऊँगी। ठीक है, तो sin x/2 क्या आ जाएगा, दैट वुड बी √1, बस वैल्यू पुट करनी है ये वाली। क्लियर है यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट, तो इट वुड बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सो 1 + 3/5/2 सॉल्व कर दो, 5 आ जाएगा एलसीएम, सो 5 + 3 दैट इज़ 8 और नीचे क्या हो जाएगा 10, सो इट वुड बी योर √8/10 विच वुड बी √4/5। सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, 2/√5, ये आ गया sin x/2। सिमिलरली cos x/2 क्या आ जाएगा बच्चा, थोड़ा डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ मैं आपको, डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, 1/√5। और फिर tan x/2 क्या बन जाएगा, tan x/2 क्या है, sin x/2 cos x/2, सो दैट वुड बी 2। ये आ गए मेरे पास सारे आंसर्स। ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया इसके अंदर। अब इसमें मैं कुछ स्टेप्स कट करने वाली हूँ और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि cos
एक्स हमें ऑलरेडी निकाल के ही दिया हुआ है कि कॉस एक्स भैया -1/3 है, और एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब है कि पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2, करेक्ट। अब देखो बच्चा, यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं अपना 2 से डिवाइड कर दूँगी। सो π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, जो x/2 है ये तेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर गया बच्चा, ठीक है। अब देखो साइन तो पॉजिटिव रहता है तो साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन के लिए आई कैन डायरेक्टली यूज द सेम फॉर्मूला √1 - cos x/2, सो दैट वुड बी √1 + 1/3/2। एलसीएम ले ले बच्चा, आंसर आ जाएगा यहाँ से तेरे पास। सो दैट वुड बी 6 नीचे 3 और 4, ठीक है। सो कैंसिल करूँगी तो 2/3, सो इट वुड बी √2/√3। ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया फॉर साइन x/2। कॉस x/2 क्या होगा, देखो नेगेटिव होगा, बिकॉज सिंस सेकंड क्वाड्रेंट में तो बस नेगेटिव में आंसर लिख दो। फॉर्मूला सेम ही रहेगा 1+, यस फॉर्मूला सेम ही रहता है बच्चा, फॉर्मूला की हमें कोई टेंशन ही नहीं है। सो 1 + cos x/2। So if I just see, it would be your 1 - 1/3/2, so that would be your, take the LCM, नीचे तो 6 ही आएगा, 3 - 1 2, simplify, so 1/√3 is going to be your, with the minus sign, sorry मैं माइनस लगाना भूल गई थी, यहाँ लगा देते स्टार्टिंग में, ये आ जाएगा। अब tan x/2, देखो tan भी नेगेटिव में रहता है और सिंस cos भी नेगेटिव में, तो इंडियन नेगेटिव में आएगा। सो √3/√2 -1/√3, कैंसिल कैंसिल, तो क्या है आंसर, -√2। येस, दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, इजी पीजी। नेक्स्ट है, ये भी बहुत सिंपल है। एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब कि π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, और कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हुई थी। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 से, जस्ट टू मेक इट x/2, इट वुड बी π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। ये मेरा मूव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, बस पहले cos x निकाल लो। क्या होता है, cos² x + sin² x = 1, तो 1 - 1/16 का रूट करना है बेसिकली, प्लस माइनस में, यहाँ प्लस माइनस लिख दिया। सो क्या आ जाएगा, इट वुड बी योर सिंपली +-√15/16, दैट वुड बी, देखो बेटा ये क्या है, cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कंसीडर कर लो डायरेक्टली, √15/4। अब कुछ नहीं है, ये वैल्यूज उठा के बस पुट करनी है और आंसर हमारे हाथ में होगा। सो cos x/2, वही सेम फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आप चाहे याद कर लो चाहे निकालना सीख लो, मैंने दोनों को तरीके सिखा दिए है, ईजी है। सो cos x/2 क्या आएगा, इट वुड बी योर √1 + cos x/2, एंड आई टोल्ड यू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है। सो 1 - √15/4/2, एंड दैट वुड बी, टेक द एलसीएम, नीचे तो 8 आ गया मेरे पास, 4 - √15। यस, ऐसे ही कुछ इसके अंदर बेटा आंसर बनेंगे, इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, एंड देयर इज़ नो नीड टू इवन सिंप्लीफाई इट मोर। ओके, इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई यू कैन, बट मैं यहाँ पे भी छोड़ सकती हूँ। sin x/2 क्या आ जाएगा बच्चा, दैट वुड बी 1 - cos x/2, दैट वुड बी योर 1 + √15/4/2, एंड दैट वुड बी योर, नीचे 8 आ गया और ऊपर क्या आएगा, 4 + √15। इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट मोर यू कैन, बट देयर इज़ नो एज सच नीड। एंड सिमिलरली tan x/2 क्या हो जाता है, दैट इज़ योर sin x/2/cos x/2। सो बस सिंपली वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। देखो √8 कैंसिल होगा, sin x/2 क्या आएगा, 4 + √15/4 - √15, and yes, that is going to be your answer. If you want, you can just simplify it further on, otherwise you can just leave it as it is as well. There is no as such complication. I would suggest all my kids to simplify it, it would be more better. Okay, it would be √4 + √15, square root of 4 + √15 and square root of 4 + √15। तो यहाँ पे तो मुझे पता ही है डायरेक्टली क्या बचेगा, इट वुड बी वेरी सिंपल, इट वुड बी जस्ट योर 4 + √15, बिकॉज इट स्क्वायर हो गया डायरेक्टली। और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा, यहाँ पे इफ़ आई जस्ट सी, मेरे पास रूट में लगेगा a² + b², सो दैट वुड बी, रूट में लग जाएगा मेरे पास 16 - 15, एंड दैट इज़ 1। सो कहीं ना कहीं आई विल गेट माई आंसर एज 4 + √15।
तो ये रहा आंसर, ये रहा आंसर और ये रहा आंसर। ऐसे ही बेटा मैंने हर किसी पार्ट का आंसर निकाल दिया। दैट्स ऑल फॉर योर मिसलेनियस। थैंक यू सो मच माई व्यूअर्स फॉर liking my channel, for liking the content that I'm delivering you. I hope that yes, the content is clear, the concepts are absolutely crystal clear. If you are having any doubt, I will just give you a link of Telegram group, and also you can just write your doubts in the comment box. Thank you so much. Bye bye. You all have a nice day, and yes, take rest. Thank you. Bye bye.